एज कर्व्स। ये कुछ इशू आ रहा है, इसको लिखने में ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? लेट मी चेक, वेट फॉर सम टाइम। हाँ, ये अभी विजिबल नहीं है? हाँ, इज इट विजिबल? यस मैम, विजिबल है। ओके फाइन। इसमें मतलब इशू आ रहा है, बॉटम लाइन पे नहीं दिखता है ये, है ना? ठीक है। In the first step, what you have to do, you have to draw all curves. हम स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा है फिर से? नो मैम। नो मैम। आई एम नॉट एबल टू। Draw all curves. Second point, identify the region, identify the required region. And third step, if vertical strip is given, elementary vertical strip is given, change it to horizontal strip. And if horizontal strip is given, you have to change it to vertical strip. Fine. एक तो क्वेश्चन करके देखो तो क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ integration. Change of order of integration. 0 to 1, x to 1, sin स्क्वायर dy dx। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेप we have to solve. In the first step, what we do, we draw all the curves for limits. अब इसको देखिए, ये क्या है? फंक्शन ऑफ x। इफ इट इज फंक्शन ऑफ x, सो इट शुड बी लिमिट फॉर y। x के टर्म में जब भी होगा वो y के लिए लिमिट होगा। Obviously, the other one will be for x. So these are the limits for y and x. So as per the first step, we have to draw all curves for limits. तो अब आप क्या करेंगे? पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। y is equal to x, y is equal to 1, x is equal to 0, x is equal 1. 4 limits are there, so 4 curves will be there. So in the first step, we are going to draw all the curves. X-axis, y-axis. Y is equal to x will be a line like this. Y is equal to x. Y is equal to 1. A straight line parallel to x-axis. X is equal to 0. X is equal to 0 is y-axis. X is equal to 1. Somewhere here it is x is equal to 1. So what we have done in the first step, we identify the limits are for which variable are which limits. And we have drawn all the curves. Y is equal to x, y is equal to 1, x is equal to 0, x is equal to 1. This line is y is equal to x. Y is equal to 1. This line parallel to x-axis is y is equal to 1. This one is x is equal to 0. This one is x is equal to 1. Fine. So now we have O, A, B, C. There are different regions. Which region is the required region? तो अब आपको concentrate करना है required region पे. Which is the required region? So when you go for this limit, what this shows, limits for y are variable. तो अब elementary strip कैसा होना चाहिए? Vertical या horizontal? क्या बताया था मैंने कल आपको? y के लिए अगर लिमिट वेरिएबल होगा, वर्टिकल स्ट्रिप जो होता है वो वर्टिकल होगा। यस, वेरी मच करेक्ट, वर्टिकल स्ट्रिप। अच्छा, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? बॉटम पॉइंट P जो है वो कहां पर होगा? बॉटम पॉइंट P lies on this curve and top point of the elementary strip will be lying on, Q will be lying on y is equal to 1. So as this limit is for P and this is for upper point of the elementary strip Q. की बात हो रही है। या वेरी मच करेक्ट। आपको स्टार्ट करना है लाइन y इज इक्वल टू x से और इस पे टर्मिनेट करना है। सपोज मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेती तो फिर क्या होता है? वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से टर्मिनेट होता है यहाँ पे। सो फाइनली आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस रीजन इज द रिक्वायर्ड रीजन। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। हाउ कैन वी से दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन? बिकॉज elementary strip is vertical and this starts from x. This is the elementary strip PQ. P के लिए अगर आप लिमिट्स देखते हैं तो P का लिमिट जो होगा वो क्या है? y is equal to x and top point Q जो है this is lying on y is equal to 1. Now x varies from 0 to 1. So minimum value x का क्या है? देखिए लेफ्ट मोस्ट वैल्यू जो है वो लेफ्ट टू राइट हम चलते वर्टिकल स्ट्रिप में, तो लेफ्ट वैल्यू 0 है और यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपका 1 है।
व्हेन दिस स्ट्रिप स्लाइड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी विल कवर दिस एंटायर एरिया, दिस पोर्शन। तो ये सभी को समझ आया अभी तक जो हमने किया? क्वेश्चन हमारा है, अब क्वेश्चन इज चेंज the order of integration, solve this one by changing the order of integration। okay, क्वेश्चन हमें ये गिवन था। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो भी लिमिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया, which limit is for which variable। इसमें x के टर्म्स थे तो ये y के लिए है और ये डेफिनेटली x के लिए होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये सारे कर्व्स को ड्रॉ किया। सेकंड स्टेप में आपने रीजन को आइडेंटिफाई किया कि कौन सा रीजन है। ये वाला पोर्शन है ट्रायंगल OAB और OBC। तो अभी हमने देखा कि OBC इज द रिक्वायर्ड रीजन एंड स्ट्रिप कैसा हमें गिवन है, वर्टिकल गिवन है, बिकॉज y के लिए लिमिट्स वेरिएबल है तो स्ट्रिप इज वर्टिकल। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग वी हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। तो चलिए अब हम इसको चेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में वर्टिकल को। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, अब हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं। ये हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? एनीवन वांट्स टू से समथिंग? हाँ, तो अब देखिए हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया। लेफ्ट पॉइंट को आप P लेबल कर दीजिए, राइट पॉइंट को Q लेबल कर दीजिए आप। दिस वाज द ओल्ड वन जो हमें गिवन था। अब ये हमारा है न्यू स्ट्रिप जो अभी हम ले रहे हैं, न्यू वन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए अब हमें लिमिट्स देखने की क्या होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए भाई, अब इसमें हॉरिजॉन्टल जीरो से y तक। हाँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या बताया था कि x के लिए वेरिएबल होगा। फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट आप स्ट्रिप एलिमेंट्री स्ट्रिप के बारे में कंसंट्रेट करेंगे। मैम मैं प्लीज क्लास ले रही हूँ। तो आप P पॉइंट जो है ना उसके लिए देखिए यहाँ पे x क्या है। तो यहाँ पे x जो है आपका 0 है, यहाँ पे x क्या है, Q पर कंसंट्रेट करिए। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, Q से आप क्या निकालेंगे विद हेल्प ऑफ दिस टू y। अच्छा, अब देखिए आपने तो अभी x के लिए लिमिट ले लिया। नाउ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y? तो y कोऑर्डिनेट आप बॉटम पॉइंट से ले लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y के लिए टॉप पॉइंट से y ले लेंगे आप। लिमिट 0 to 1, ये आपका एज इट इज है साइन y स्क्वायर। बट ये क्या था, पहले हमने क्या किया था, जो गिवन केस था वो y इंटीग्रेट हो रहा था ना। अब ये क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना होगा, देन विद y। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करिए, क्या आया। अब जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जो y वाले टर्म्स हैं वो आप बाहर ले लीजिए, साइन y स्क्वायर x वैरीज फ्रॉम 0 to y dx dy। फाइन मैम एक बार अब इसका इंटीग्रेशन लिमिट्स एक बार फिर से समझना है। तो जब भी आप लिमिट्स लेते हो ना, ये वाला केस ओल्ड केस क्लियर था या नहीं, ये बताओ मुझे। ओल्ड वन वाज क्लियर टू यू और नॉट? ये क्लियर था। जब आप ये नया स्ट्रिप ले रहे हैं ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो आपको वो 3 रूल्स याद रखने हैं। कौन से रूल्स बताए थे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए मैंने? लिमिट्स फॉर x विल बी वेरिएबल। तो बस अभी आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे। कहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, इस स्ट्रिप पे कंसंट्रेट करिए ओनली, फॉरगेट एवरीथिंग। फाइन, अब जब आप इस स्ट्रिप में देखते हैं P पॉइंट पर x क्या होगा, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट थिंक अबाउट दिस पॉइंट P। तो P पॉइंट पर x क्या होगा ये देखना होता है। पॉइंट P पे x क्या है, P लाइज ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो हमने x को ले लिया 0। फिर आप Q पॉइंट पे आ जाइए, फॉरगेट एवरीथिंग, आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ Q पॉइंट को देखना है कि Q लाइज ऑन विच कर्व। पॉइंट Q जो है वो कौन से कर्व पर मूव कर रहा है ये देखना है, सब कुछ भूल जाइए। Q जो है वो कौन से कर्व पर है, तो वो जो इक्वेशन है ना वहां से x निकालो। वो जो भी इक्वेशन होगा, इट कैन बी दिस, इट कैन बी सर्कल, इट कैन बी हाइपरबोला, पैराबोला, एनीथिंग, जो भी वो इक्वेशन होगा ना वहां से x को लेफ्ट में रखो, बाकी सारा राइट में y को ले आओ। तो यहां से हमने क्या किया, x को हमने लेफ्ट में रखा है और y को राइट में ले गए। तो ये x का लिमिट है। फिर अब ये स्ट्रिप बॉटम में सबसे नीचे कहां तक जा सकता है, देखो ये नीचे यहाँ पर आएगा। जब आप इसको मूव करते हो ना इस ब्लू कलर के शेडेड रीजन में, तो ये नीचे कहां तक जा सकता है, मिनिमम ये यहाँ तक O तक आ सकता है। तो O से y कोऑर्डिनेट पिक करना है आपको, वो y का लोअर लिमिट होगा। फिर इस स्ट्रिप को मैक्सिमम हाइट हम कहां तक ले जा सकते हैं, यहां तक। तो इस पर्टिकुलर टॉप लाइन पे, टॉप पोजीशन पे ये y का हाईएस्ट वैल्यू क्या है। 2-3 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए x का जो लिमिट होगा वो वेरिएबल होता है। मुझे सुना क्या बोल रही हूँ, नहीं समझ आया, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में x के लिमिट्स वेरिएबल होंगे, y के लिमिट्स कांस्टेंट होंगे और बॉटम टॉप हमें देखना होगा। तो x के लिए जब वेरिएबल लिमिट लेते हैं ना, लेफ्ट पॉइंट P होता है, राइट पॉइंट Q होगा। तो P लाइज ऑन विच कर्व, ये जिस कर्व पर है वहां से आपको x निकालना होता है। सो वी हैव सॉल्व्ड x इज इक्वल टू 0। Q पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, यहां से x को सॉल्व कर लो, वो जो वैल्यू आएगा वो इसका अपर लिमिट होगा। तो ये जो इंटरनल है ना लिमिट, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए होता है। अब इस स्ट्रिप को मूव करके ये पूरा रीजन हमें कवर करना होता है।
तो इसको सबसे नीचे आप कहां तक ले जा सकते हैं स्टेप को, बॉटम पॉइंट, ये जो मैंने आपको बताया था ना बॉटम टू टॉप, बॉटम पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है 0, टॉप पॉइंट पे y का वैल्यू है 1, क्योंकि y के लिए लिमिट्स कांस्टेंट होंगे। अभी समझ आया? यस मैम। शुड आई प्रोसीड? शुड आई प्रोसीड? मैम स्टेप हाँ। टॉप टू बॉटम मूव करेगा या बॉटम टू टॉप? बॉटम टू टॉप, हम ना मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना होता है तब ये कवर करेगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ तो चलिए अब देखिए ये आपके पास क्या था, अभी हमने यहाँ तक सॉल्व करा था ना, इसके आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आगे जब सिंप्लीफाई करोगे ये क्या आएगा, y, नेक्स्ट स्लाइड पे लेती हूँ मैं, क्या था हमारा वो इंटीग्रल बताना जरा, इंटीग्रेशन y 0 to 1 sin y स्क्वायर इंटीग्रल x क्या था आपका, बोलना जरा। 0 से y। 0 से y। x का 0 to y और dx है यहाँ पे एंड Yes, dy। हाँ तो अब इसको सॉल्व करिए, आप क्या आएगा देखिए, y 0 से y यहाँ पे आप ले लेंगे sin y स्क्वायर, इसका Into y. x लिमिट 0 to y dy, सो फाइनली यू हैव y 0 to 1 sin y स्क्वायर और ये y minus 0 dy, so finally we have y 0 to 1 y sin y स्क्वायर into y dy। अब ये आपको सॉल्व करना था, इसमें आप y स्क्वायर को t ले लीजिए, 2y dy is dt, माइनस हाफ cos y स्क्वायर। यस वेरी मच करेक्ट, सो dt अपॉन 2 ये आपने ले लिया। अब t के लिए लिमिट्स कैसे निकालेंगे हम, एट y is equal to 0 t 0, y को 0 रख दीजिए, t 0 आ गया, एट y is equal to 1 मान रखोगे तो क्या है, ये 1 स्क्वायर is equal to t, t is equal to क्या हो जाएगा 1, so limits for t will be 0 to 1 sin t, y dy क्या था dt by 2, so half of integral sin t dt 0 to 1, half of इसका इंटीग्रेशन कर माइनस t 0 to 1, माइनस साइन अगर चेंज करना है तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव टू 1 to 0, लिमिट लोअर लिमिट पहले 0 था नेगेटिव साइन के लिए, अब मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया है तो लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, अपर लिमिट 0 हो गया, हाफ ऑफ cos 0 माइनस cos of 1, cos 0 is 1 cos 1, दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी को ये? Yes, ma'am. यस मैम। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब इसमें हम, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बैंक 0 to 1 से दिस इज I 0 to 1 x स्क्वायर 2 माइनस x y dx dy। मैम अभी आपको सॉल्व फिगर बनाना जरूरी है? हाँ मैम हर क्वेश्चन में फिगर बनाना जरूरी है क्या? फिगर नहीं बनाओगे ना तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे रीजन, है ना, लिमिट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो फिगर इज कंपलसरी, है ना, उसके बगैर ये मैंडेटरी है, अगर फिगर नहीं बनाओगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, कौन सा रीजन है, कौन सा स्ट्रिप है, जैसे देख के आपको ये तो समझ आ जा रहा है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कैसे बनाओगे, सो फिगर इज कंपलसरी, बिना फिगर के आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। चलिए अभी ये क्वेश्चन आपके पास है ना, अब इसको देख रहे हैं सामने, दिस इज द लिमिट फॉर y, दैट मींस द स्ट्रिप इज वर्टिकल अगेन, तो अब हमें क्या करना है, इसको पहले ये लिमिट्स हमने देखा कौन सा लिमिट किसके लिए है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 माइनस x। नाउ सेकंड स्टेप इज टू ड्रॉ द कर्व्स, चलिए कर्व हम ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा पैराबोला जो है हमारा x स्क्वायर है, y के अबाउट सिमेट्री होगी, तो थोड़ा सा स्पेस जो है वो यहाँ पे लेना होगा मुझे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये कैसा पैराबोला है देखिए, x में पॉजिटिव इवन है ना, तो ये इस तरीके का पैराबोला होगा, y के अबाउट सिमेट्री होगी, x में इवन पावर है तो y के अबाउट सिमेट्री होगी, गया। नेक्स्ट आपका क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस x, इसको आप ले सकते हैं y प्लस x2 और x प्लस y इज इक्वल टू 2, दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा डिफरेंस है, हियर इट इज, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, 0, 0, 2। अच्छा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का, इन दोनों का पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, y इज इक्वल टू x स्क्वायर पुट कर दीजिए इसमें, x स्क्वायर x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 0, क्या आएगा भाई पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बताइए? मैम 1 1। यस यहाँ पे आ गया 1, 1, देखिए x के 2 वैल्यूज आएंगे ना, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, इसको अगर मैं लेती हूँ 2x माइनस x माइनस 2 0, x प्लस 2
माइनस एक्स प्लस 2 0, x प्लस एक्स माइनस 1 0, एक वैल्यू तो 1 आ रहा है और एक आ रहा है -2 समवेयर हियर, इधर कहीं जाके कट करेगा ये पैराबोला को, बट हमें इधर की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये जो लिमिट्स हैं देखो ये सारा देख के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये वाला एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा -2 वाला, तो ये तो छोड़ दो अभी। अभी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये मिल गया 1 1, ये मिल गया हमें 2 0, ये मिल गया 0 2, वी हैव ड्रॉन दिस, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। x 0 कहाँ पर है, x 0 जो होता है वो y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन पैरेलल टू x इज इक्वल टू, हाँ स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन पैरेलल y एक्सिस, फाइन। अब हमें ये देखना है विच इज द रिक्वायर्ड रीजन, मैं सबकी लेबलिंग कर दूं, ओ चलिए हम बाद में देखते हैं, पहले अब रीजन बताइए कि कौन सा होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखो पहले, और उसके बाद मुझे बताइए कि विच इज द रिक्वायर्ड रीजन। केयरफुली आप इसको देखिए, ये वाले इंटीग्रल को आई पे कंसंट्रेट करो और ये जो हमने डायग्राम बनाया ना इस फिगर पे कंसंट्रेट करो, इनके जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, चारों पॉइंट के बीच का नहीं होगा बेटे, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है आपको। मैम एक नाम तो दे ये दीजिए। हाँ चलो मैं नाम दे देती हूँ, A B C D। अब मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए सब जगह लेबलिंग कर दिया है, बट अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से देखना है और देख के मुझे बताना है कि कौन सा रिक्वायर्ड रीजन होगा, बहुत ध्यान से समझिए। OAC। Yes, very much correct. OAC is the required region. Why this is the required region? Why this will be the required region? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं देखिए, हमें एक स्ट्रिप लेना, हाँ क्या चीज, रिक्वायर्ड रीजन, हाँ रिक्वायर्ड रीजन मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक मिनट देखो पहले इसको देखिए, आपको ये तो समझ आ गया कि वर्टिकल स्ट्रिप है जो पैराबोला से स्टार्ट होकर के लाइन पे टर्मिनेट होगा। अगर आपने यहां से स्टार्ट किया, ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप लो जो पैराबोला से स्टार्ट हो और लाइन पे टर्मिनेट हो। चलिए हम एक मिनट, ये जैसे मैंने ये लिया है ना, पैराबोला से स्टार्ट है, ये वाला पॉइंट P है, ये Q है, पैराबोला से स्टार्ट होके कहाँ पे टर्मिनेट होना, लाइन पे टर्मिनेट होना था, तो वो इधर भी हो सकता था कहीं। देखिए अगर मैं ऐसा स्ट्रिप लेती हूँ ना, ये वाला एक वर्टिकल स्ट्रिप मैं लूं तो ये भी पैराबोला से स्टार्ट हो रहा है और लाइन पे टर्मिनेट हो रहा है, सपोज ये भी तो रीजन एक हो सकता था ना, ऐसा ये स्ट्रेट लाइन है ये वाला, दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वल टू, ये भी एक रीजन हो सकता था, कौन सा, OCM, दिस could also be the required reason, but सिर्फ इसको देख करके आप डिसाइड नहीं करोगे, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ये देखने के बाद ना आपको ये भी देखना है, सेकंड पॉइंट x का मिनिमम वैल्यू 0 होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। अगर ये वाला हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, x का मिनिमम वैल्यू तो -2 आ रहा था यहाँ कहीं पे, जैसे हमने ये निकाला था ना, तो ये 2 2 0 होना था, बट लिमिट तो हमें क्या दिया गया है, 0 to 1 दिया है, तो इस पर्टिकुलर लाइन पे x है 0 और x का मैक्सिमम वैल्यू है 1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने ये सारे कर्व्स पहले आइडेंटिफाई किए, लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सारे कर्व्स को ड्रॉ किया, फिर आपने देखा कि रिक्वायर्ड रीजन क्या है। रीजन में बच्चों का कहना है कि मैडम हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा, लेबलिंग करके हमें तो बहुत सारे रीजन दिख रहा है, ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, इधर दिख रहा है, बहुत सारे रीजन रिक्वायर्ड रीजन बन सकते हैं, बट कौन सा रिक्वायर्ड रीजन है उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि स्ट्रिप कैसा है। तो स्ट्रिप अभी हमें ये क्लियर है कि वर्टिकल स्ट्रिप है, वाई के लिए लिमिट्स वर्टिकल स्ट्रिप है, ये ध्यान देंगे आप, और जैसे आपको वर्टिकल स्ट्रिप नजर आ गया तो अब आप क्या करोगे, इसका बॉटम पॉइंट स्टार्ट करो पैराबोला से और टर्मिनेट कर दो लाइन पे, तो ये भी एक स्ट्रिप हो सकता था, ये वाला रीजन भी हो सकता था, बट ये नहीं है, क्यों नहीं, बिकॉज x के लिए, फिर जैसे आपने स्ट्रिप देखा ना, फिर सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है कि x के लिए लिमिट्स क्या है, तो x जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज है, बोथ आर पॉजिटिव वैल्यू, तो इससे आप डिस्कार्ड कर दो, ये हो ही नहीं सकता। तो अब आपको इधर के बारे में सोचना है, तो इधर सोचेंगे जब आप पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ जाइए, x 0 से स्टार्ट होके 1 पे टर्मिनेट हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस येलो शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड रीजन। समझ आया अभी ईशा? यस मैम। और बाकी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम, यस। हाँ यस मैम। तो अब आ जाइए आप, मुझे ना वो अटेंडेंस शेयर कर देना बेटे। कौन करेगा अटेंडेंस शेयर? सी सेक्शन का कोई बच्चा करो भैया आज, एनीवन हु विल शेयर टुडेज अटेंडेंस? भाई वॉलंटियर क्यों नहीं बनते आप लोग, अपने आप से क्यों नहीं बोलते कि मैम मैं शेयर करूंगी या मैं शेयर करूंगा? हाँ मैम मैं कर दूंगी। कौन बोला? इशिता गुप्ता? अच्छा ठीक है ईशा, चलो हम आ जाते हैं इसमें। इस इधर देखिए, आप वापस आ जाइए आप फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। अब हमें क्या करना होगा, अभी तो हमने जस्ट जो गिवन कंडीशन है ना उसको सारा ड्रॉ करके आइडेंटिफाई किया रीजन को, एंड वी गॉट द गिवन स्ट्रिप इज वर्टिकल स्ट्रिप। नाउ वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अब वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करना है, बट अब यहाँ पर क्या होगा देखो, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो डायग्राम बन के आ रहा है ना, ये कुछ ऐसा शेप बन के आ रहा है, देखो मैम इसे दो हिस्से में तोड़ना पड़ेगा ना? हाँ, इसको अब आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 2 हिस्से में इसे तोड़ना पड़ेगा। क्यों है? क्योंकि ये जैसे मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने लिया पी, तो कुछ पोर्शन में तो देखो क्यू जो है वो इस लाइन पे मूव कर रहा है, और कुछ पोर्शन में आने के बाद जैसे इस पॉइंट से नीचे आ जाता है ना यहाँ पर, तो ये कहाँ पे मूव करेगा, पी जो है वो पी, तो पी सेम लाइन पे है वाई एक्सिस पे, बट क्यू जो है वो पैराबोला पे आ गया शिफ्ट होकर के। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली,
अभी मैंने क्या किया, एक मैं स्ट्रिप ले रही हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सपोज मैंने कोई ऐसा स्ट्रिप लिया, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे P है, द न्यू वैल्यू दिस ब्लू शेडेड Q। ब्लू शेडेड Q कुछ टाइम तक तो ये लाइन पे मूव कर रहा है, और उसके बाद जैसे ही हम स्ट्रिप को थोड़ा नीचे लाते हैं ना, तो ये किसमें मूव करने लगेगा, अब ये पैराबोला पे आ गया मूव करते करते। जब आप इसको नीचे लाते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं, जब शिफ्ट करते हैं, तो ये जो पहले था ये क्या हो जा रहा था, एक बार Q जो है वो दिस Q पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड लेटर ऑन इट इज लाइंग ऑन द कर्व दिस पैराबोला। तो अभी क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसे टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। टू पार्ट्स में कैसे ब्रेक करेंगे, देखो कहाँ से कोई दूसरा पेन है, विच कलर शुड आई टेक, चलो ब्लैक ही ले लेती हूँ। तो अब देखिए हम इसको ना इस फॉर्म में यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसे जब हम ब्रेक करेंगे ना, ये वाले पॉइंट से ब्रेक कर दिया मैंने। अब एक स्ट्रिप मैं ले लूंगी P1 Q1 और दूसरा मैं ले लेती हूँ P2 Q2। यहाँ पे अब इसको ध्यान से देखिए, तो ये टू पार्ट्स में ये ब्रेक हो गया है। ये वाला जो रीजन था हमारा OAC, OAC, we have divided this region into two parts. One region, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक नाम और दे देते हैं M। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, there are two regions, one is this one and the other one is, ये एक आपको मिल गया, और दूसरा रीजन हमें क्या मिल रहा है, देखिए ये वाला। देयर आर टू रीजन्स, ओके। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन गिवन केस था, I is equal to से दिस वन इज रीजन वन, दिस वन इज द, तो रीजन वन के लिए हमें लिमिट्स लेने हैं, तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0, A के कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, 1 1, C, हाँ, और C के कोऑर्डिनेट्स है 0, 2, 0, चलिए, और M के M0 1 है, M के कोऑर्डिनेट 0 1 है ना, और ये 0 2। अभी आप फर्स्ट इस वाले रीजन को देखिए, बॉटम वाले R1 पे कंसंट्रेट कीजिए, एवरीवन प्लीज कंसंट्रेट ऑन R1। और अब इसके लिए आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होता है, लिमिट्स फॉर x विल बी वेरिएबल। तो अब x के लिए लिमिट्स वेरिएबल होंगे, फॉरगेट एवरीथिंग, सिर्फ P1 पे कंसंट्रेट करिए, स्ट्रिप के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे कंसंट्रेट करो। P1, P1 जो है ये जिस भी कर्व पे है, दिस P1 इज लाइंग ऑन विच कर्व, Y। दिस P1 इज लाइंग ऑन विच कर्व, y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस पे x क्या होगा, 0, भाई y एक्सिस पे x क्या, 0, 0 x 0 0 होगा। से 1। Q1 जो है वो, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ नहीं करो भाई, 0 अभी से रूट y, देखो बहुत ध्यान से देखो, हाँ अभी देखो बहुत ध्यान से देखो, Q मूव्स ऑन, इंटरनल लिमिट वेरिएबल आएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, Q जो है ना इस कर्व पे मूव कर रहा है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द कर्व, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको क्या बोला था, ये जो भी इक्वेशन होगा इसको x के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे जो ये पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पैराबोला को x के लिए सॉल्व करो, x को लेफ्ट में रखो, बाकी को राइट जाओ, स्क्वायर क्यूब जो भी है वो हटा दो, तो प्लस माइनस 5 बन गया। बट ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y। तो अब इसमें q के लिए लिमिट जो होगा रूट y, अंडर रूट ऑफ y। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बिकॉज P1 वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन दिस वन बॉटम पार्ट, ग्रीन शेडेड रीजन को देखना है, और इस पे जो ये स्ट्रिप है ना उस पे कंसंट्रेट करो। P1 पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x क्या होता है, 0, तो आपने x का वैल्यू ले लिया 0। Q1 पॉइंट लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो ये पैराबोला को सॉल्व करके x निकाला हमने, तो x आया पॉजिटिव रूट y, ये हमने ले लिया। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y मिनिमम, आप ये बॉटम में कहां तक जाएगा, बॉटम से स्टार्ट करके टॉप तक ले जाओ, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट, और ये ग्रीन शेडेड रीजन पे हाईएस्ट वैल्यू है ना, तो y आ गया आपका 0 2। ये जो भी है इसको उठा के कॉपी पे दो फॉर्म को, बट आपको पहले dx के लिए इंटीग्रेट करना है, देन dy। अभी तो हमने सिर्फ रीजन 1 को कवर किया है, अब रीजन 2 पे आ जाइए, रीजन 2 पर आ जाइए। रीजन 2 पर जब आते हैं तो स्टेप क्या लिया हमने, P2 Q2, P2 Q2, फिर से इंटरनल लिमिट के लिए फॉरगेट एवरीथिंग, कंसंट्रेट ऑन P2 पॉइंट, P2 पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, तो P2 पॉइंट पे x क्या है, तो यहाँ पे x अगेन 0 है। Q2 पॉइंट, Q2 पॉइंट कहां पर है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, लाइन का इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, y x equal to minus y, माइनस x था, इसको x के लिए सॉल्व 2 माइनस y। तो x को आपने सॉल्व किया, x टू 2 माइनस y, वेरी मच करेक्ट। तो ये आपका x का लिमिट आया। अब ये जो टॉप सेकंड हमने जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है ना P2 Q2, इसको बॉटम में कहां तक ले जाएंगे, पर्पल शेडेड रीजन में आ जाइए, सबसे नीचे कहां तक जा सकता है, ये सिर्फ यहां तक जाएगा, यहां से y पिक करो, तो पॉइंट हो गया, और पर्पल रीजन में y मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 2। ये आपका हो गया अपर। अभी समझ आया सभी को कि क्या किया हमने, यस मैम। यार भाई बताइए,
मैम समझ में तो आ Anyone? गया, लेकिन एक बार और रिपीट कर दीजिए। अच्छा, एक बार और बता देती हूँ। हमें फर्स्ट पॉइंट तो सबको समझ आ गया था ना कि रीजन कैसे निकाला था। सेकंड पॉइंट पे क्या होता है, अगर आप सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, सिंगल लेते हैं, तो ये क्या होता, जैसे हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ये स्ट्रिप ऐसे मूव करते करते जब आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हो इसको, ये यहाँ से इसको ड्रैग करो, इसको यहाँ पर से उठा के ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक जाओ, तो ये क्यू पॉइंट जो है ना एक टाइम तक तो मूव कर रहा है पैराबोला पे, लेकिन उसके बाद ये मूव करेगा स्ट्रेट लाइन पे। तो जैसे ही डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं ना, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, क्यू पॉइंट अगर चेंज कर रहा है कर्व को, तो जिस पॉइंट पे चेंज करता है वहां पे पार्टीशन बना दो। यहाँ जैसे 2 पार्टीशन बन गया, सम ऑफ द क्वेश्चन 3 पार्टीशंस भी बनते हैं। तो अभी वाले केस में तो हमने ये वाला लाइन ड्रॉ करके पार्टीशन बना दिया, ये लाइन हमने ड्रॉ किया। अब 2 रीजन से ये हमें क्लियर है। 2 रीजन में पहले आपने एलिमेंट्री स्ट्रिप ली है बॉटम रीजन में, बॉटम रीजन में जो आपने एलिमेंट्री स्ट्रिप P1, अब आप सिर्फ कंसंट्रेट करो P1 पे। तो P1 जो है वो कौन से लाइन पे है, कौन से कर्व पे है, जो भी कर्व है, जैसे अभी तो यहाँ पे क्या था कि ये y एक्सिस पे था तो हमने डायरेक्ट x0 कर दिया। सपोज ये y एक्सिस नहीं होता, कुछ और कर्व होता ना, तो वो 0 ना होकर के जो भी वो कर्व होता वहां से हम लेते, ठीक है। तो यहाँ से x निकाला P1 के लिए, फिर Q1 के लिए x निकालना था। सपोज Q, जैसे किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि Q मैडम 1 ले लीजिए, तो अगर मैं 1 लेती हूँ ना, तो ये 1 पे अगर ये मूव करता, तो 1 तो कुछ ऐसा लाइन हो जाता है, एक रेक्टेंगल शेप बन जाता। x आपका क्या है 0 से 1 और y 0 से 1 है, तो आप देखो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। वो तो हमें रेक्टेंगल तो नहीं बनाना ना, ग्रीन शेडेड रीजन रेक्टेंगल थोड़ी है। तो ये तो मूव कर रहा है Q कर्व पे, ये वैरी कर रहा है। देखिए आप इस स्ट्रिप को यहाँ पे ले आइए, अभी यहाँ पर ले आइए, तो Q यहाँ कहीं पे, फिर यहाँ कहीं पे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करोगे तो so is changing its position when we are moving this strip bottom to top। जब इसको ऐसे से मूव करें ना स्ट्रिप को, तो Q का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। वो कभी यहाँ पर था, फिर यहाँ पे आ गया, ऐसा करते हुए यहाँ तक जा रहा है, टॉप पॉइंट यहाँ तक जाएगा Q। तो Q तो कर्व पे मूव कर रहा है, X उसका चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है X, वो कर्व से निकालना है, X चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। दैट वाज व्हाई वी हैव टेकन द अपर लिमिट फॉर X एज अंडर रूट ऑफ y। फिर अब y के लिए मिनिमम, अब आप वो भूल जाइए कि कोई वेरिएबल है, आप सीधा सीधा कांस्टेंट वैल्यूज लेने बस। तो कांस्टेंट वैल्यू y के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है और y का मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम ग्रीन रीजन यहीं तक जाएगा। इससे ऊपर अगर स्टेप को ले जाओगे तो पर्पल शेड में आ जा रहा है, रीजन चेंज हो जा रहा है। सो y मैक्सिमम इज 1। फिर सेकंड स्टेप ले लो, सेकंड वाले जब आप लोगे तो P2 जो है वो तो y एक्सिस पे मूव कर रहा है, x को हमने 0 लिया। अब Q जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। देखो यहाँ पर एक पोजीशन ये था इसका, एक दूसरा वाला पोजीशन ले लीजिए, थोड़ा इसको ड्रैग कर चलिए। अब इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाएं, तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, इधर ले जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो Q कहाँ मूव कर रहा है, Q इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। हियर इट वाज हियर, इट वाज कमिंग टू हियर। तो ये पूरा, हाँ यस, इस क्वेश्चन का आंसर 9/24 आ रहा है। एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें तो 3/8 दिया हुआ है बेटे, चेक कर लेते हैं अभी, है ना। एक दो बच्चे और सॉल्व करो इंटीग्रल, फिर चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। इसमें जो दे रखा है आपके क्वेश्चन बैंक में वो 3/8 दे रखा है, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए ये सब, हाँ कितना है था आपका 9/24। अच्छा 9/24, ठीक है, 3/8 करेक्ट, यस वेरी मच करेक्ट। तो अभी देखो आंसर आ गया इसका 3/8। हाँ इधर देखो ये जो है ना, ये स्टेप आप बॉटम से टॉप ले जा रहे हो तो क्यों मूव कर रहा है, और फिर इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू जो y का मिनिमम वैल्यू था वो 1 था, और मैक्सिमम वैल्यू ये लेना था, ये कांस्टेंट लिमिट लेते हैं। क्लियर है अभी? यस मैम। यस मैम। चलिए तो एक और क्वेश्चन करें हम। इसका आंसर क्या बताया आपने, 9/24 और 3/8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का इसको सॉल्व करना है या दूसरा क्वेश्चन बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं स्टूडेंट्स? सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेंगे ना, इंटीग्रेट। आगे चलूं मैं, मैम करवा दो आप क्वेश्चन इंटीग्रेशन करा दूंगी तो क्वेश्चन फिर कम हो पाएगा बेटा। ठीक है मैम, नेक्स्ट चलो करा देती हूँ, कोई जैसा भी है मुझे बता दो। इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करा दूंगी, और नहीं तो फिर इंटीग्रेशन जिसने किया है भाई वो चलो या तो शेयर कर दो। यहाँ पे देखिए जब इंटीग्रेट करोगे ना इसको x के रिस्पेक्ट में, तो y को पहले बाहर ले लेना, ठीक है। y को बाहर लेके x के लिए इंटीग्रेट करना, x² आएगा, x²/2, फिर ये लिमिट अपर लिमिट अंडर रूट ऑफ y ले लो, लोअर लिमिट 0। तो आपका जो ये आ जाएगा सॉल्व करके, तारीख y था और ये वाला y x²/2 था, तो y/2 हो जाएगा। यस मैम आ गया सर, y² पाएगा, ले जाइए यहाँ पे नहीं है, पूछेगा बेटा। हाँ आप लोग आपस में प्लीज शेयर कर लेना, है ना। हाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट वाला ले लें अभी कुछ क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड ले लेते हैं। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी है तो ये करेक्ट भी हो जाएगा। इसमें तो खैर देखो ये वाला थोड़ा डिफरेंट सा है, 0 to infinity e to the power -xy sin nx। इसको करेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा एरर है, dx dy एंड शो दैट 0 to infinity sin x/x is equal to π/2। एक तो इसका वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना है, और दूसरा आपको एक और कंडीशन इसमें सेकंड पार्ट में कुछ और सॉल्व करना है। पहले ये समझ लो फर्स्ट पार्ट। नाउ
चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे भाई, क्या दिख रहा है इसको देखो, बहुत ध्यान से देखो। इंटीग्रल लिमिट जो होता है इंटरनल वन, इसके लिए लिमिट है कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट लिमिट्स होते हैं ना तो इसको इस फॉर्म में ब्रैकेट लगा लो बस डायरेक्ट, इंटरनल लिमिट फॉर इंटरनल वेरिएबल। तो ये तो कांस्टेंट लिमिट्स है 0 टू इंफिनिटी, सो दिस विल बी फॉर x एंड दिस विल बी फॉर y। तो अब ये x 0 टू इंफिनिटी, y 0 टू इंफिनिटी, डायग्राम क्या बनना चाहिए भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, वेरी मच करेक्ट, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है आपको वेरिएबल लिमिट, और ये बस हमने यहाँ से क्या डिसाइड किया कि ये x के लिए फर्स्ट इंटीग्रेट हो रहा है। x 0 टू इंफिनिटी, इधर राइट साइड चाहिए प्लस इंफिनिटी, फिर y 0 टू इंफिनिटी, तो ये सारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट रिक्वायर्ड है। बट हमें क्या बोला गया है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसको हमें ऑर्डर चेंज करके इवैल्यूएट करना है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, रीराइट द सेम प्रॉब्लम एज x varies from 0 to infinity, y varies from 0 to infinity, e to the power minus xy sin x dy dx, जो भी अब इसमें x y से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, y के रिस्पेक्ट में हमें पहले इंटीग्रेट करना है। तो y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करने के लिए हमने ऑर्डर चेंज किया, और जो y से इंडिपेंडेंट टर्म से उसे बाहर ले लो, x 0 to infinity, this term is independent of y, sin nx आपने बाहर ले लिया, y varies from 0 to infinity, e to the power minus xy dy dx। इसका इंटीग्रेशन करो, e to the power minus xy, e to the power ax का इंटीग्रल क्या होता है, e to the power ax upon a, e to the power minus के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x है sin एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा e to the power minus को a एज्यूम करना है, कांस्टेंट है वो, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, y 0 to infinity dx, then 0 to infinity sin nx है माइनस x को ऐसे दो, ये आपका आ जाएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 0। तो ये जो है e टू माइनस इंफिनिटी 0 होता है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0, और e टू द पावर 0 ये ऑलवेज 1 होगा। तो ये आ गया माइनस माइनस 1 कैंसिल होके फाइनली i जो बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा, अभी जो हमने सॉल्व किया i इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी साइन nx, और वन था यहाँ -1 है, तो ये आपका ये इतना सभी को समझ आया, यस और नो? Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हमने जस्ट यहाँ तक सॉल्व किया, अभी हम आगे फाइनल वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं, जो हमें गिवन कंडीशन था ना उसी के अकॉर्डिंग, और जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो हम लेंगे। i हमारा क्या था, i इज इक्वल टू, जो ओरिजिनल केस था वो x था ना, या y के रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में था ना, और ये क्या था, e टू द पावर माइनस एक्स वाई साइन nx dx, dx पहले था तो इसको इसी फॉर्म में सॉल्व करें। एज वी नो e टू द पावर ax साइन bx dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx। बाई पार्ट से सॉल्व करके देख सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो, इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में आपके पास, आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इंटरनल इंटीग्रल को, तो ये आपको क्या मिलेगा भाई, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ध्यान से देखना, अब ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे भी x आ रहा है और इसमें भी x का टर्म आ रहा है, सो देयर इज नो टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, so we will take the entire term within this integral sign with respect to x। तो अब इसको इंटीग्रेट करिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, -x यहाँ -y, सॉरी, यहाँ पे या माइनस y जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y इंटू एक्स साइन n इंटू एक्स dx dy। अब इसको इससे कंपेयर करिए दोनों को, तो a जो है वो -y बना और b जो है वो n बन जाएगा। So what we have, y 0 to infinity, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, e टू द पावर a x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन dx, a क्या है -y साइन bx माइनस b इंटू cos bx, ये आपका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और लिमिट्स क्या है x के लिए, x वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी dy। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो जब आप अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट किसके लिए ले रहे हैं, x के लिए ले रहे हैं आप, फाइन, x के लिए ले रहे हैं दोनों लिमिट्स, अभी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था आपने, सो y वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और x के लिए अब आप लिमिट रख दीजिए, ये क्लास कितने तक होता है, हाँ 12:35 तक, लेट मी डू फास्ट। तो ये वाला जो है ना, बस 5 मिनट दे दो मुझे, तो ये x आपने यहाँ पे इंफिनिटी रखा x के लिए, तो ये e के पावर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी, और यहाँ माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पे इंफिनिटी नहीं, यहाँ पे साइन और कॉस कैसे होते हैं, साइन का और कॉस क्या होता है,
all we know sin theta is always less than equal to 1, mod of sin theta and mod of cos theta always less than equal to 1. मतलब -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है फाइनाइट वैल्यू. तो जब आप e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी से इसको मल्टीप्लाई करोगे फाइनाइट वैल्यू को, तो ये आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो 0 मिलेगा अपर लिमिट. डिनोमिनेटर को अभी ऐसे सॉरी e के पावर क्या था, हाँ, तो ये हमने, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये वाले टर्म्स तो मैं इसको कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको मैं भी ऐसे लेके क्या ले लेती हूँ, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इनटू सम फाइनाइट क्वांटिटी माइनस e के पावर -0. लोअर लिमिट रखो और इस पूरे में 0 रख दो, तो ये sin 0 0 देगा माइनस n cos 0, ये आएगा आपका. तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी वाला टर्म आएगा कुछ, यहाँ से एक n बार बाहर आ जाएगा, माइनस n माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी n अपॉन y स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी dy, ये होगा. अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 1 अपॉन n tan इनवर्स y अपॉन n, और इस जब लिमिट रखेंगे y के लिए 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 0, तो ये पहले i सॉल्व किया था ना लास्ट स्लाइड में, देखो ये वाला i था आपका क्या था, sin nx अपॉन x, और अभी जो हमने सॉल्व करा वो हमें मिला पाई बाई 2. फाइन, तो क्या मिलेगा, therefore i इज इक्वल टू पाई बाई 2. समझ आ गया सभी को? मैम 0 इन्फिनिटी sin x, हाँ बोलिए. मैम ये Yes. कितने मार्क्स की आती है यूनिट? यस, ये कितने मार्क्स की आती है यूनिट? ये कितने 20 मार्क्स का होता है मल्टीपल इंटीग्रल, सभी यूनिट्स Okay, को ma'am. 20 मार्क्स से. फाइन, हाँ, तो चलिए अभी आज के लिए इतना सफिशिएंट है.